Hello friends, welcome to Distance Learning. So as you know that RIC notification will be released very soon. आप official website में भी देख सकते हो. Here the official website is updated now. You can see it is written Welcome to NCERT Common Entrance Examination C 2022. And also you can see the latest notice, important notice that it is written registration will start soon. Okay, registration start होने वाला है वो बता रहे हैं. So in the previous video I gave you this information particularly, okay, as well as I told you that different course, what are the courses that are available in RI and number of seats available, okay. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कितने सीट्स अवेलेबल है, किस आरआई में कितने कितने सीट्स हैं और कौन कौन से आरआई में क्या क्या कोर्स प्रोवाइड होता है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो. So I will explain the detailed seat matrix in this video again. Already I have explained seat matrix many times, but in this video I will explain again because a lot of aspirants as well as their parents are requesting to make a video on seat matrix. तो आज का जो वीडियो होगा that will be completely based on the seat matrix or the seats available in each RI for each states. As you know, RIC exam is all India level examination. That's why all India aspirants participate in the examination, and common examination will be there, same syllabus, same question pattern for everyone. But the counseling process is different in different RI. Okay, there are 5 RIs as I told, and सबके अंदर अलग अलग स्टेट्स होते हैं और सारे स्टेट्स का सीट नंबर इक्वल नहीं होता, and all the states have different number of seats, and that I will discuss in this video. So let's start. See, and let me tell you, if you have not subscribed this channel, then definitely subscribe it because you will get RIC and CUET notification from this video, as well as you will get many help from this video, as well as आपको इसी चैनल से बहुत सारा चीज़ मिलेगा. इसी चैनल से आपको RIC के लिए कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा. बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, हमारा टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है. इसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हो. तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी आपको करना है, ठीक है, क्योंकि लाइक करोगे तो हमको भी मतलब मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो आपके लिए बनाने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो प्रोवाइड स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर RIC एग्जाम दैट आई विल आल्सो शो. बट पहले हम लोग सीट मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम RI मैसूर फॉर साउदर्न रीजन. द रीजनल इंस्टीट्यूट नेम इज RI मैसूर. तो सदर्न जोन के लिए RI मैसूर है, रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन मैसूर. इसमें पहले देख लो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं. ओके, सो आंध्र प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप. These are the states and Indian territory. Those are coming under RI Mysuru. So let us see the seat matrix. Okay, let me first tell you कि आप seat matrix खुद से कैसे देख सकते हो. How can you yourself find the seat matrix in official website? See, many students ask me the official website of RIC, and they also tell me, sir, in the particular website they are telling form is started, form is finished. ऐसा कुछ नहीं हुआ है. Do not follow थर्ड पार्टी वेबसाइट, ओनली ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना. ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है CEE.ncert.gov.in, ठीक है. ये ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है. मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ, ठीक है. ये ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे नाम है, आप देख सकते हो, ठीक है. CEE.ncert.gov.in, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है, ठीक है. यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ. ये जो देखो, दिस इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट CEE.ncert.gov.in. सिर्फ इसी वेबसाइट से ही आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और कोई भी वेबसाइट से नहीं मिलेगा. तो इसीलिए कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट को फॉलो नहीं करना है. फॉर एवरी इंफॉर्मेशन यू नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट ओनली, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप. यू विल गेट एवरी नोटिफिकेशन एंड एवरी अपडेट्स इन आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप, एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहीं पे ही मिलेगा. और इसका ही हम लोग प्रूफ जो है अपने चैनल पे दिखाते हैं. हम इधर उधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, सब कुछ ऑथेंटिक मिलेगा विद प्रूफ. सो लेट्स सी, आप कैसे देख सकते हो, हाउ कैन यू योरसेल्फ सी द सीट मैट्रिक्स. तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करना. ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीट मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है, कोर्सेज एंड सीट मैट्रिक्स लिखा हुआ है. यहाँ पे कोर्सेज एंड सीट मैट्रिक्स में सीट मैट्रिक्स को क्लिक करोगे. सीट मैट्रिक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक PDF निकलेगा. यू कैन डाउनलोड द PDF. आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है. कहाँ पे कितना सीट है. तो सबसे पहले देखो टोटल यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कितना सीट है. लेट मी शो यू. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये
बीएससी बीएड पीसीएम का पहले देख लो, ठीक है। बीएससी बीएड पीसीएम का यहाँ पे ये कौन सा था, या तो ये बीएससी बीएड पीसीएम एंड सीबीजेड का हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो बीएससी बीएड पीसीएम का सबसे पहले देखते हैं। लेट अस सी द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर बीएससी बीएड पीसीएम कोर्स। फॉर बीएससी बीएड पीसीएम कोर्स नंबर ऑफ सीट्स इन आंध्र प्रदेश फॉर जनरल मेरिट कैटेगरी इज 3 सीट्स, फॉर एससी कैटेगरी 1 सीट, फॉर एसटी 1 सीट, फॉर ओबीसी 2 सीट्स। टोटल सीट्स फॉर आंध्र प्रदेश स्टेट इज 7 सीट। तो आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए 7 सीट है टोटल, ठीक है। जनरल 3, एससी एसटी 1 और ओबीसी 2, टोटल 7 सीट है बीएससी बीएड पीसीएम के लिए आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ऐसे बीएससी बीएड सीबीजेड का भी होगा, बीएड का भी होगा, बीए बीएड का भी होगा, सब दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखो आपका आंध्र प्रदेश का हो गया। फिर कर्नाटका, फॉर कर्नाटका देयर आर 5 seats for general category, 1 for SC, 1 for ST, 2 for OBC and 9 total. Here EWS also will be there separately. EWS का seats आपको दिखाएगा। EWS का seat कितना है separately, तो EWS का यहाँ पे separate seat होगा। I will show you 4 seats are there for EWS, ठीक है। Total 4 seats are there. Total 4 seats are there for RI Mysore in BSc BEd PCM. BSc BEd PCM के कोर्स में EWS का भी रिजर्वेशन है, लेकिन टोटल 4 सीट्स अवेलेबल है। तो ये हो गया, तो ये 7 हो गया आंध्र प्रदेश। कर्नाटका का 9, केरला का कितना है, जनरल 3, एससी 1, नो एसटी सीट्स, ओबीसी 1 एंड टोटल 5 सीट्स आर देयर। फॉर तमिलनाडु 5 जनरल सीट, 2 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी, टोटल 11 नंबर ऑफ सीट्स आर देयर। फॉर तेलंगाना 2 जीएम मतलब जनरल मेरिट, 1 एससी, नो एसटी, 2 ओबीसी, टोटल 5 सीट्स आर देयर। फॉर Pondicherry, that is an union territory, 1 general merit seat only there, SC ST OBC reservation is not there for what, for your Pondicherry. So total 1 seat is there. Total PWD or personal disability reservation will be 2. So if you count it, so you will find that here it is 16 plus 5 21, 21 plus 11 32, 32 plus 5 37, 38 and 40. Total 40 seats including PWD, and extra year 4, it is written 4 na, that 4 means what, that 4 means the seats for EWS, reserved seat for EWS. So total 4 seats are reserved for EWS category for BSc BEd PCM course in RI Mysore, okay, because 10% reservation rule is there. And also 1 seat is reserved for, यहाँ पे it is written clearly, 1 seat is reserved for Hyderabad Karnataka quota from GM of Karnataka. GM ऑफ कर्नाटका जो जनरल मेरिट है ना कर्नाटका कोटा का, उसमें 1 सीट हैदराबाद कर्नाटका कोटा को दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बीएससी बीएड सीबीजेड कोर्स का सीट, तो सिमिलर यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश का जनरल 3, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 2, और कर्नाटका का जनरल 5, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 2, केरला का 3 जनरल, 1 एससी, नो एसटी, 1 ओबीसी, तमिलनाडु का 5 जनरल, 2 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी, तेलंगाना 2 जनरल, 1 एससी, नो ओबीसी, नो एसटी, 2 ओबीसी, Pondicherry only 1 general seat are there. Total again similar structure is there. For 2 seats for PWD, 4 seats for EWS are also reserved. Total number of seats is 44. So total number of seats for BSc BEd CBZ is also 44 and BSc BEd PCM is also 44. Now let us see the total number of seats for BA BEd course. Again it is also similar, completely similar. Number of seats are exactly similar here also. Again here 3 general for Andhra Pradesh 1. So it is completely similar. Okay, it is completely similar. Total 19 general seats are there, 6 SC, 3 ST and 10 SC, 10 OBC reserved seat, 2 PWD and 4 EWS reserved seats are there. So structure is completely same, matrix is completely same. Here also same pattern is there. You can see 3 general, 1 SC, 1 ST, 2 OBC, 5 general, 1 SC, 1 ST, 2 OBC, 3 general for Kerala, 3 general, Andhra Pradesh and Karnataka I told you. For Kerala 3 general, 1 SC, no ST and 1 OBC. For Tamil Nadu 5 general, 2 SC, 1 ST and 3 OBC seats are there. For Telangana 2 general, 1 SC, 0 ST and 2 OBC. For Pondicherry only 1 general seat and 2 PWD, 4 EWS. तो simple है और ये तो ये हो गया आपका complete. I told you the number of seats for RI, what, RI Mysuru for integrated courses. I told you the number of seats for BSc BEd CBZ, BSc BEd PCM and BA BEd in RI Mysuru. Let us see the number of seats available in RI Mysuru for 2-year BEd course. 2-year BEd के लिए कितने number of seats हैं?
2 ईयर बीएड कोर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे टोटल कितना है आपका जो है 2 कोर्सेस है ना, बीएड साइंस एंड बीएड आर्ट्स। तो बीएड साइंस के लिए भी जनरल 2 है, बीएड आर्ट्स के लिए भी जनरल 2 सीट्स, ठीक है। फॉर बीएड साइंस जनरल 2 सीट फॉर आंध्र प्रदेश एंड फॉर बीएड आर्ट्स आल्सो जनरल 2 सीट्स फॉर आंध्र प्रदेश, ओके। फॉर एससी 1, for B.Ed Science 1 SC and B.Ed Arts also 1 SC. So it is plus written na, it is written 2 plus 2 1 plus 1, that means that B.Ed Science plus B.Ed Arts, okay, you understood the thing, B.Ed Science plus B.Ed Arts। तो यहाँ पे B.Ed Science में 2 है, Arts में भी 2 है, SC में 1 1 0 0, यहाँ पे OBC 1 1, okay। तो B.Ed Science का if we talk about the number of seats for Andhra Pradesh in B.Ed Science, then it will be 2 plus 1 plus 1, that will be 4, and if you count both then 4 plus 4 into 2 what 8, okay, double means both have similar seats, B.Ed Science and B.Ed Arts same number of seats are there, similar seats, okay। But we will see the reservation is different, that's why here 2 plus 3 means Science 2 Arts 3, you can see like this, 2 plus 3 1 plus 1 1 plus 1 2 plus 1, like that you can see, okay। So I told you the fundamental how it is written, I told you, accordingly you can count, okay। So again for Karnataka you saw that there are 6 seats for science and 6 seats for what arts. For Kerala 2 2, okay, 0 0, and here 1 plus 1. So total number of seats 3 seats for science and 3 seats for B.Ed Arts. So total 6 seats for Kerala. For Tamil Nadu 2 plus 3 1 plus 1 1 plus 1, and here 2 plus 2. Here the total 13 seats are there. For science you can see number of seats are 6, and here for arts 7, like that, okay। And for Telangana you can also see, and for Pondicherry you can see, okay, Pondicherry only 1 seats are there. So 1 seat is reserved for PWD here, okay, 1 seat reserved for PWD। There is no applicant under PWD science stream, that seat will go to Tamil Nadu। अगर कोई भी एप्लीकेंट PWD से नहीं है तो वो तमिलनाडु का जनरल कोटा में चला जाएगा, अगर PWD कोई नहीं है तो। If no applicants under arts stream, 1 seat will go to Andhra Pradesh general merit quota। See, if no applicant under PWD, okay, अगर कोई भी एप्लीकेंट PWD कैटेगरी में अप्लाई नहीं करता है तो जो PWD का एक सीट यहाँ पे था, ठीक है, एक सीट यहाँ पे था, वो एक सीट साइंस के स्ट्रीम का, साइंस के देखो आर्ट्स के स्ट्रीम में 2 सीट है, PWD साइंस का एक है, आर्ट्स के स्ट्रीम में 2 सीट्स है। देयर आर 1 सीट फॉर PWD साइंस स्ट्रीम एंड फॉर 2 सीट्स फॉर PWD आर्ट्स स्ट्रीम। तो जो एक सीट है PWD का, लेट मी राइट हियर, ओके, यहाँ पे टोटल जो है इसका 1 plus 2 है, ठीक है, PWD का 1 plus 2 है, 1 फॉर साइंस एंड 2 फॉर आर्ट्स, ठीक है। तो 1 जो सीट यहाँ पे हो गया, ओके, 1 सीट इट विल गो टू तमिलनाडु जनरल मेरिट कोटा। एंड अगर कोई आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर कोई PWD नहीं होता तो एक सीट उसमें आपका कहाँ जाएगा, आंध्र प्रदेश कोटा जाएगा, एंड दूसरा सीट जाएगा किसके पास, कर्नाटका ओबीसी कोटा को जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर PWD में टोटल 8 सीट में 2 सीट है तो 1 सीट विल गो टू आंध्र प्रदेश जनरल मेरिट कोटा, तो इट विल इंक्रीज 1 मोर, इट विल बी 3 हियर, ओके, फॉर आर्ट्स, सॉरी, इट विल बी 3 हियर, ओके, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। if there will be no PWD aspirant, so this will be 3 सीट्स, आंध्र प्रदेश जनरल मेरिट कोटा का सीट 3 हो जाएगा। एंड एक और सीट जो रह गया, अगर कोई भी एस्पिरेंट नहीं है तो दूसरा सीट चला जाएगा कर्नाटका का ओबीसी कोटा। यहाँ पे कर्नाटका का ओबीसी कोटा जो ये जो 1 है ना, ये हो जाएगा 2। अगर PWD एस्पिरेंट नहीं है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। इसको अच्छे से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यहाँ पे आपने ये चीज देखा कि PWD का 1 फॉर साइंस स्ट्रीम एंड 2 फॉर आर्ट्स स्ट्रीम इज रिजर्व, एंड फॉर EWS सेपरेटली 10% सीट्स आर देयर, तो यहाँ पे 5 सीट्स है। तो EWS का अगर हम बात करेंगे तो EWS का जो यहाँ पे ये इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। EWS का आप कैसे कर सकते हो, EWS का आप इस तरह से कर सकते हो, 2 plus 3 equals to 5। तो 2 सीट्स EWS का 2 सीट रिजर्व है B.Ed साइंस के लिए एंड 3 सीट रिजर्व है B.Ed आर्ट्स के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस वीडियो को एक और बार देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो, लेकिन इसको अच्छे से समझो, क्योंकि मुझे पूछोगे तो आई मे नॉट मींस रिकॉल एट दैट टाइम, बट आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। आप अच्छे से समझना, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से यहाँ पे क्लियरली आपको सब कुछ बताया। दोबारा वीडियो को देखना अगर समझ में नहीं आया तो, लेकिन मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियरली बता दिया, ठीक है। अब पूरा RI मैसूर का हमने पूरा देख लिया, ठीक है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे है, RI मैसूर में ऑल इंडिया लेवल पे एक स्पेशल कोर्स है जो कि और दूसरे RI में नहीं है, ओके। तो उसका कितना सीट है, वो कोर्स का नाम है MSc Ed
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो यहाँ पे सबके लिए कितना सीट्स है, तो टोटल 18 सीट्स है, ठीक है, 18 सीट्स आर देयर टोटल, ठीक है, 18 सीट्स आर देयर। लेट मी शो यू कैसे 18 सीट्स है यहाँ पे। लेट मी शो यू यहाँ पे, हाँ, तो टोटल यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे, यहाँ पे स्टेट वाइज नहीं है। ये MSc एड कोर्स इज नॉट ए स्टेट वाइज कोर्स, ओके, यहाँ पे यू विल नॉट गेट कोर्स स्टेट वाइज, यू नीड टू फाइट ऑल इंडिया लेवल, आपको ऑल इंडिया लेवल फाइट करना पड़ेगा, स्टेट वाइज फाइट यहाँ पे नहीं होगा। तो टोटल SC कितना सीट है, SC 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, ST 1, SC 2 सीट, ST 1 सीट इज रिजर्व फॉर OBC, 4 सीट्स आर रिजर्व फॉर EWS, 2 seats are reserved for PWD, 1 seat is reserved, and for general total 8 seats are there. So total seats 18 seats are for physics honors, 18 seats are for chemistry honors, and 18 seats are for mathematics honors. So 3 honors are provided, physics, chemistry and maths. So for each stream there are 18 seats. So total seats will be 18 plus 18 plus 18. Okay, 3 ऑल अलग अलग स्ट्रीम के 18 प्लस 18 इस तरह से आपका है, हर स्ट्रीम में 18 सीट, तो 18 प्लस 18 प्लस 18, ये दिस आर द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन डिफरेंट कोर्सेस इन RI Mysuru MSc ED कोर्स, ओके, क्लियर। Now let us see the MEd course in RI Mysuru, okay, MEd course in RI Mysuru. Let us see the number of seats in MEd course in RI Mysuru. So for Andhra Pradesh 3 seats for general merit, 1 seat for SC, 2 seat for OBC. Total number of seats are 6. For Karnataka, 3 seats for general, 1 seat for SC, 1 seat for ST, and 2 seats for OBC. For Kerala, 2 seats for general, 1 for SC, no ST, but 1 OBC. For Tamil Nadu, 4 general, 1 SC, 1 ST, and 2 OBC. For Telangana, 2 general, 1 SC, no ST seats are there, but 1 OBC seat is reserved. For Pondicherry only 1 seat, okay, and for PWD total 2 seats are there, and for EWS there are 3 seats are reserved. PWD के लिए 2 सीट रिजर्व है, EWS के लिए 3 सीट्स रिजर्व है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर देयर 35। टोटल कितने सीट्स हैं, 35 सीट्स आर देयर फॉर MEd, ओके, टोटल कितने हैं, 35 seats are there. If no applicant under PWD admission is restricted to maximum 3 seats only. ओके, EWS कैटेगरी 10% यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे लिखा गया। टोटल 35 सीट्स आर देयर फॉर MEd कोर्स इन RI Mysuru, ओके, क्लियर। सो दिस वाज द डिटेल सीट मैट्रिक्स फॉर RI Mysuru. In this video we have discussed about the number of seats available in different courses in RI Mysuru particularly, and for RI Mysuru which states can participate or which states applicant can fill the form. So Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry and Lakshadweep. Only these states or union territory, 1, 2, 3, 4, 5 states and 2 union territory. Total 7 states और union territory मिलके फाइट करेंगे RI Mysuru के लिए। तो और कोई अप्लाई नहीं कर सकता BSc BEd, BA BEd और आपका जो है MEd और BEd के लिए। लेकिन फॉर MSc BEd कोर्स इट इज ए ऑल इंडिया लेवल कोर्स, ठीक है ना। फॉर MSc ED इज ऑल इंडिया लेवल कोर्स। तो यहाँ पे इसीलिए स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, ऑल इंडिया के, आप कोई भी स्टेट से, ऑल इंडिया में जो 28 स्टेट्स फॉर 8 यूनियन टेरिटरी है ना, 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं RI Mysuru का MSc ED कोर्स में। लेकिन बाकी जो MEd, BEd, BA BEd, BSc BEd है, उसमें सिर्फ ये जो 7 मैंने आपको दिखाया वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द सीट मैट्रिक्स वीडियो, बट एट लास्ट आई वांट टू शो यू आवर स्टडी मटेरियल। आपके पास हमारा एक स्टडी मटेरियल ऐसे पार्सल जाएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू, जिसके अंदर आपको एक थ्योरी बुक मिलेगा RIC का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। आपको एक MCQ बुक मिलेगा इसके साथ, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड उसका आंसर की मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा एक और बार मैं आपको बताना चाहूंगा, एक थ्योरी बुक, एक MCQ बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट। टोटल आपको स्टडी मटेरियल का जो है आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दिया जाएगा। आप यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन अबव, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस थ्रू गूगल मीट, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो, लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।